Hello everyone, welcome to Rotab. I am Santosh. So today we are going to study about the marginal costing and standard costing through the help of MCQs. So today's class is going to be a very important class because we have seen that in the actual examination of SEBI, PFRD and NPS, the concept related to the marginal costing and standard costing are usually asked. So I have also included the PYQs of the examination in our today's lecture. So this class is going to be a very important class, and these two chapters are also the most important chapters of costing, राइट. सो आज जो भी क्लास होगी इसको बहुत अच्छे से समझना है और अच्छे से सुननी है मेरी सारी बातें और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं साथ में. तो लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, what is the correct definition of marginal costing? So before getting into the details of marginal costing, I want you to understand what is this marginal costing, the concept of marginal costing first, then we are going to attempt this question, right? तो marginal costing एक मेथड है क्या? नहीं, इट इज़ नॉट अ मेथड. मैंने फर्स्ट क्लास में ही मेथड और टेक्निक्स में डिफरेंस बता दिया था, बट आई एम डिस्कसिंग इट अगेन सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टू थिंग्स. Marginal costing is not a method, it is a technique, and I have discussed the differences between method and techniques. That method is anything which is industry specific. Method is anything that is industry specific, right? Like we have the output costing, right, and we have the process costing. Similarly, we have the contract costing. So these are the methods of costing, and the method of costing that is to be applied in a type of industry is going to be dependent upon the nature of that industry. All right, this is what method is. But what are the techniques? Techniques are independent of the industries. Techniques like we have the absorption costing, we have this marginal costing, right? So first let's try to understand what is this marginal costing and what is this absorption costing. We have talked about absorption costing in our previous classes as well, but I am going to discuss these two concepts again with you. See, marginal costing में क्या होता है ना, we only take the variable cost of the product. मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक वर्ड एक सेंटेंस बहुत प्यार से समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है. मार्जिनल कॉस्टिंग में वी ओनली कंसिडर variable cost you can say as the product cost. ठीक है जी, समझ में आ गई बात. प्रोडक्ट कॉस्ट में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करेंगे. बाकी जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट हैं, चाहे वो फिक्स्ड ओवरहेड हो, चाहे वो ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ही क्यों ना हो, अगर वो फिक्स्ड हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड इन द पीरियड कॉस्ट. पीरियड कॉस्ट क्या है? मतलब किस पीरियड में, जिस पीरियड में वो अकर हो रहे हैं, तो उस पीरियड में प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए उसको कंसिडर कर देंगे. बट प्रोडक्ट कॉस्ट में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करेंगे. बट एज फार एज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज कंसर्न्ड, इट इज़ नॉट लाइक दैट. फैक्ट्री ओवरहेड, though it is fixed overhead, it will be included in the product cost in the manufacturing, in the absorption costing technique. तो हमें ध्यान क्या रखना है, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, कि absorption costing में हम मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड को भी प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, वेयर एज इन द केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग वी आर ओनली गोइंग टू कंसिडर वेरिएबल कॉस्ट एज द प्रोडक्ट कॉस्ट. ठीक है, ये याद रहेगा कि, और अगर सिंपल, अगर ब्रीफ में मैं बोलूँ, एक सेंटेंस में अगर याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करते हैं एज द प्रोडक्ट कॉस्ट. बात खत्म, ठीक है, बात समझ में आ गई. अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. तो हमने पढ़ लिया कि वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात होती है मार्जिनल कॉस्ट में एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट. तो प्राइम कॉस्ट पे ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, डायरेक्ट लेबर आ जाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल आ जाते हैं, बट इट इनकम्प्लीट है. प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड, इसमें स्पेसिफाइड नहीं है कि ओवरहेड क्या है, वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ओवरहेड कैन बी ऑफ टाइप वेरिएबल ओवरहेड एंड एज वेल एज फिक्स्ड ओवरहेड, राइट. थर्ड है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. प्राइम कॉस्ट में तो हमारा मोस्टली वेरिएबल चीज़ें आ जाती हैं, और साथ में दे रखा है वेरिएबल ओवरहेड भी, तो ठीक है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में है, मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करते हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड भी होगा. तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर. आई होप कि मार्जिनल कॉस्टिंग की जो टेक्निक है उसका आपको एक जिस्ट समझ में आ गया होगा.
बात समझ आ रही है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, यही छोटा सा डिफरेंस है बस जो मैंने समझाया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो गया प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन सेज व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग marginal cost again. Okay, only variable costs are considered absolutely correct, but let's read out the other option as well, right? Only direct costs are considered no, direct costs plus overhead are considered no, so answer is obviously your option number 1, as we have already discussed about the marginal cost and marginal costing, right? So option number 1 is the correct answer for the second question. I'm again telling you that this class is going to be a very important class from the conceptual clarity point of view and from the examination point of view, right? So please listen to me very carefully in this particular class regarding marginal costing and standard costing. We are going to have some numerical as well based on marginal costing and standard costing, right? Now here we have the numerical with us. Question number 3 is a numerical and it says that fixed cost is 30,000, PV ratio is 20%, compute the break-even point. See, to attempt this question, you need to have a basic understanding of the underlying concept here. And we are going to discuss about all the underlying concept here, right? So we are going to discuss about fixed cost. Let me write it down so that it becomes easy for you to understand. We are going to understand about variable cost. We are going to also understand about PV ratio. What is this? And we are also going to understand about the break-even point, right? So let's start with the fixed cost. So as you know, in a fixed cost we include the cost which is not going to change with respect to change in the production level up to a certain limit. ठीक है, एक बार हिंदी में भी सुन लो। फिक्स कॉस्ट में वो सारी कॉस्ट इंक्लूड होती हैं जिसको हम जो कि चेंज नहीं होगी प्रोडक्शन लेवल के इंक्रीज या डिक्रीज होने में एक सर्टेन लिमिट तक। एग्जांपल दे देता हूँ एक, लेट्स सपोज कि हमने लैंड में खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे गेहूँ उगा रहे मान लेते हैं, ठीक है, तो इस लैंड की जो मान लेते हैं जो रेंट है वो तो हमें देनी ही पड़ेगी, भले हम 1 क्विंटल गेहूँ इसमें हम कल्टीवेट करें या फिर 2 क्विंटल करें, एक सर्टेन लिमिट तक जितनी इसकी कैपेसिटी है तब तक हम कितना भी प्रोडक्शन करें हमें तो रेंट उतना ही देना पड़ेगा। लेट्स सपोज 50,000 दे रहे हैं, लेट्स सपोज 50,000 पर मंथ, तो ये फिक्स कॉस्ट हो गई, एक तरह की क्या हो गई, एक फिक्स कॉस्ट हो गई। इसी तरह प्रोडक्शन में भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, ठीक है। और अप टू सर्टेन लिमिट क्यों बोला मैंने, अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है या आउटपुट इंक्रीज़ करना है तो उसकी कैपेसिटी जितनी होगी उतनी तो कर सकते हैं, उसके बाद तो नहीं कर सकते। अगर उससे भी ज़्यादा करना है तो हमें एक और लैंड को रेंट पे लेना पड़ेगा, तो फिक्स कॉस्ट तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि इसका भी रेंट हो जाएगा 50,000। इसलिए मैंने बोला फिक्स कॉस्ट आर फिक्स्ड अप टू अ सर्टेन लिमिट, राइट। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब सबको समझ में आ गया, ठीक है। वैसे तो ये पहले से आता होगा, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, बट रिवाइज हो गया होगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू दी वेरिएबल कॉस्ट पार्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which are going to change with the level of production, with the level of output. For example, let's say we have to manufacture pen, ठीक है जी, तो मैन्युफैक्चर हमें करना है पेन और पेन में लग रहे हैं प्लास्टिक्स, तो नंबर ऑफ पेन अगर बढ़ते हैं, अगर नंबर ऑफ आउटपुट बढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के पेन के, तो ऑब्वियस सी बात है प्लास्टिक भी ज़्यादा यूज़ होगा, isn't it? तो इसका मतलब है कि ये एक वेरिएबल कॉस्ट है, प्लास्टिक की कॉस्ट क्या एक तरह की वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो होने वाला है ब्रह्मास्त्र, पीवी रेशियो और आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए होता है, उसके बाद आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलते हैं, इसको सीवीपी एनालिसिस बोलते हैं बेसिकली। तो ये मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि इसमें फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं, बट मैं जो समझाने जा रहा हूँ अगर वो समझ में आ गई बात तो कोई भी फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड या ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होते हैं ना, इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, पीवी रेशियो के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनको करने में कोई फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो मैंने बताया अगर वो ध्यान से सुन लिया तो सारे फॉर्मूले मैं समझा दूंगा कि कैसे फॉर्मूले बने हुए हैं, एक्चुअल में फॉर्मूले डराइव कैसे हुए हैं ये मैं समझा दूंगा, तो सारे फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में क्वेश्चन समझ के ही सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मेरी बात कंडीशन क्या है कि मेरी बात ध्यान सुननी है, ठीक है। बात सुनो, सेल्स हमारे पास है, सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग कोई इंडस्ट्री है, उसने पेन्स बना लिए उसके बाद बेचे, तो सेल्स हमारे पास है। इस सेल्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, पहले आएंगी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इसको बनाने में वेरिएबल कॉस्ट तो लगी होगी, इजंट इट, लगी होगी, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। और हमारे पास क्या होगा, और हमारे पास होगा फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो हमारे पास सारी कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, यही दोनों तो कॉस्ट होंगी, ठीक है।
प्लस, लेकिन हम सेल्स की बात कर रहे हैं, कॉस्ट की बात तो कर नहीं रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, साथ में प्रॉफिट भी होगा। बोलो इतनी चीज समझ में आई? बहुत आसान था। देयर इज नथिंग वेरी टेक्निकल इन दिस इक्वेशन, इजंट इट? तो सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमारा आ गया जी। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो है, वी कॉल इट कंट्रीब्यूशन। इसको सब बच्चे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और ये कंट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं इसको, मैं ये बता देता हूँ। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जब हम माइनस कर देते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, ऑब्वियसली इधर जाएगा ना, जब तो माइनस हो जाएगा, तो जो बचता है ना वो कंट्रीब्यूट करता है फिक्स कॉस्ट को पे करने में और बचा हुआ प्रॉफिट में, इसलिए इसका नाम कंट्रीब्यूशन रखा गया है। ठीक है, ये क्या है? कंट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट टुवर्ड्स प्रॉफिट, इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स प्रॉफिट, राइट, एंड फॉर द रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट, सो देयरफॉर वी कॉल इट कंट्रीब्यूशन। ठीक है सर, समझ में आ गई बात कि ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। जब इतनी बात समझ में आ गई तो बाकी सब समझ में आ गया। अब सुनो, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट ऑफ सेल्स है, सेल्स की वो वैल्यू है रिवेन्यू के टर्म्स में, यूनिट के टर्म्स में, जिस पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। बात ध्यान सुनना, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ऐसे तो फॉर्मूले हजारों हैं, कितने याद करोगे? तो अकाउंट्स में, कॉस्ट में, जितने भी कॉमर्स सब्जेक्ट हैं, इसमें जितनी कम से कम चीज़ें याद रखनी पड़े उतनी कम से कम चीज़ें याद रखनी चाहिए हमें, क्योंकि जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी चीज़ें कम याद रखनी पड़ेंगी। याद करने के लिए इतनी सारी चीज़ें कितनी याद करोगे, भूल जाओगे, है ना? तो इसीलिए समझने की कोशिश करनी है। तो बीईपी क्या है? वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी जो सेल्स होगी वो क्या होगी, वो इस तरह से होगी कि प्रॉफिट जीरो होगा, कि हमारा प्रॉफिट जो है वो जीरो होगा, मतलब ये जो प्रॉफिट है ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है, इसको मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन था ना, था कि नहीं था? इसका मतलब है अगर प्रॉफिट जीरो है तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर हो जाएंगे। ये चीज़ याद रहेगी? ठीक है सर, हमको याद रहेगा। आप आगे बढ़ाइए, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रहेगी। ध्यान क्या रहेगी? समझा दिया ना यहाँ पे, तो ऑब्वियसली रहेगा प्रॉफिट जीरो है तो फिक्स कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन के बराबर हो ही जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट में। इसमें क्या याद करना है? ठीक है, अब आते हैं पीवी रेशियो में। ये पीवी रेशियो क्या है भला? पीवी रेशियो इज द रेशियो बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, दैट्स इट। पीवी रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स है। ठीक है, मतलब ये कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है टोटल सेल का। एक चीज गौर करने वाली यहाँ पे ये है कि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है तो। बात समझ आ रही है? क्योंकि मान लेते हैं अगर 100 रुपये का पेन है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट अगर मान लेते हैं मोटा मोटा 80 रुपीज़ है, तो अगर 200 रुपये का पेन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 160। और कंट्रीब्यूशन क्या था? इस 80 को छोड़ के जो बचा वो कंट्रीब्यूशन था, मतलब 20% क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन हो गया ना पहले वाले केस में 100 रुपीज़ के पेन में। कितना वो 20% हुआ कि नहीं कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन या फिर पीवी रेशियो भी 20% हुआ। अब आया, अब चमका। मैंने क्या बोला? कंट्रीब्यूशन 20% है और कंट्रीब्यूशन सेल के परसेंटेज में निकालोगे तो क्या बोलते हैं इसको? पीवी रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज ही पीवी रेशियो है। तो वेरिएबल कॉस्ट को हटा के जो बचा वो हमारा पीवी रेशियो है। देखो इतना आसान हो गया। लेकिन मेरी बात समझो, 200 रुपये के 2 पेन थे, 200 रुपये की सेल हुई, वेरिएबल कॉस्ट थी 160। अब अगर परसेंटेज निकालते हैं हम कंट्रीब्यूशन का तो कितना आ जाएगा? बचा हुआ कितना पार्ट है? 40 है ना, 40 रुपीज़ बचे हुए कंट्रीब्यूशन। 40/200 करोगे तब भी कितना आएगा? तब भी तो 20% ही आएगा। तो क्या चेंज हुआ पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर चेंज नहीं हो रही तो कैसे चेंज हो जाएगा? वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, even if the fixed cost changes, then also the PV ratio will remain same. Why? क्योंकि अगर फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं कम हो गए, मान लो यही वाला एग्जांपल लेते हैं। लेट मी रब दिस इंक फर्स्ट ताकि और क्लैरिटी आ जाए। अगर 100 रुपये का पेन था, 80 रुपये वेरिएबल कॉस्ट थी, मान लेते हैं 20 रुपये का, मान के लेते हैं 20 रुपये बचे, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। इसमें फिक्स कॉस्ट भी था और प्रॉफिट भी है। मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट 10 रुपीज़ है, प्रॉफिट भी 10 रुपीज़ है। मैं आपसे कहता हूँ कि ठीक है बच्चों, फिक्स कॉस्ट बढ़ा दो, फिक्स कॉस्ट बढ़ा दो। 20 में से 15 रुपये हो गया फिक्स कॉस्ट। कितना हो गया फिक्स कॉस्ट? 15 रुपीज़ हो गया, तो प्रॉफिट 5 रुपीज़ हो गया ना।
तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो भी क्या पीवी रेशियो चेंज होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इनका सम तो सेम ही है, सम तो 20 है ना, और पीवी रेशियो निकाल किससे रहो? सम से निकाल लो, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100 करके कर रहे थे ना, तो आएगा तो तभी 20% ही। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब हो जाएंगे सारे बच्चों से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि समझ लिया होगा सबने। और जो मैं लिखा रहा हूँ ना, ये नोट करते रहना, ये किसी बुक में नहीं मिलता है, मतलब मिलता है लेकिन बुक में समझाया नहीं सकता ना उस तरह से, बुक में तो लिखा जाएगा सिर्फ। तो ये मेरे साथ नोट्स बनाते रहना अगर चाहिए कुछ बड़ा, ठीक है। तो क्योंकि सारे फॉर्मूले याद करने तो बहुत मुश्किल है। देखो मैं तो फॉर्मूले पर्सनली बताता हूँ, मैं फॉर्मूले याद नहीं करता था कभी पहले, ठीक है। मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले हैं, मैंने कोशिश यही की है कि मैं फॉर्मूले याद ना करूँ, मैं कम से कम फॉर्मूले याद करता था। ये है ब्रह्मास्त्र, याद करने वाली कम से कम चीज़ करो, समझने वाली मैक्सिमम कर लो। और कहीं कहीं भी याद करना ही पड़ता है, जैसे ऑडिट सब्जेक्ट है उसमें याद करनी पड़ती थोड़ी बहुत चीज़ें, कंपनी लॉ है उसमें याद करनी पड़ती है, जहाँ याद करनी पड़ रही है वहाँ कर लो, और जहाँ बच रहा है, जहाँ सेव हो रहा है वो मेमोरी, ठीक है, तो उसको सेव कर लो, समझ लो, अंडरस्टैंडिंग ले लो। तो चाहे वो जीआरएफ हो, चाहे वो अकाउंटेंट का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम निकले हैं मुझसे अभी तक, सब में मैंने यही ट्रिक अपनाई है कि मैंने चीज़ें समझी हैं रटने से ज़्यादा, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत हो गई इधर उधर की बातें, चलो। क्वेश्चन इज दैट पीवी रेशियो इज 20% एंड फिक्स कॉस्ट इज 30,000। अब मेरी बात ध्यान समझना, हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। हमने क्या डिस्कस किया था कि ब्रेक इवन पॉइंट में फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर होंगे, इजंट इट? याद आया कुछ? तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ ना कि ये कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और पीवी रेशियो क्या होता है ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स होता है कि नहीं होता है? बताओ, कोई डाउट है इसमें? यही तो होता है, ठीक है सर, हमको समझ में आ गया, यही होता है। और सेल्स क्या है यहाँ पे? ब्रेक इवन सेल्स ही, और क्या है सेल्स? ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल सेल्स तो ब्रेक इवन सेल्स ही है ना। ब्रेक इवन पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो सेल्स जहाँ पे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है सेल्स बताने की कोशिश कर रहा है, कि सेल्स पूछ रहा है हमसे कि क्या सेल्स होगी ब्रेक इवन पॉइंट पे, ठीक है। तो पीवी रेशियो 20% है, इसका मतलब है कि सेल्स को अगर मैं इधर ले आऊँ तो सेल्स का 20%, ये 20% में गिवन है, ठीक है। तो इसको अगर नेक्स्ट स्टेप भी लिख देता हूँ मैं, 20% इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बिना फॉर्मूला याद किए करेंगे हम इसको। सेल्स का 20% कितना होगा? कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन में पता है फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो दैट इज इक्वल टू 30,000। ठीक है सर, मज़ा आ गया समझ के। तो ये अब तो क्वेश्चन कर ही लोगे बंधुओं। सेल्स 20/100 इक्वल्स टू 30,000 हो गया। उसके बाद 5 इंटू कर दो, सेल्स कितना आ गया बताओ? 1,50,000। देखो ऑप्शन में कहीं है 1,50,000, बिल्कुल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। कोई फॉर्मूला करने की जरूरत पड़ी इसमें? ना लगे रहते हैं फॉर्मूला लगाने में, सिंपल मैथमेटिक्स लगाई है, क्वेश्चन को समझ के और फॉर्मूलेस को समझ के अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है कुछ फॉर्मूलेस, देखो फिर फॉर्मूले आ गए, मैंने तो ऐसे ही बता दिया था बट फॉर्मूले समझ लेते हैं एक बार। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स होता है इनटू 100, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये दो फॉर्मूले भी हैं जो कि सिमिलर हैं, कुछ अलग नहीं है पीवी रेशियो से, बट इसको समझना है। पीवी रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। ऊपर था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, तो अगर कंट्रीब्यूशन में कुछ चेंज हो रहा होगा तो खाली चेंज को लेंगे, तो डिनोमिनेटर में भी चेंज को ले लेना, सेल्स की चेंज को, तो आ जाएगा पीवी रेशियो। ठीक है, और इसी तरह से अगर प्रॉफिट में भी चेंज लेंगे तो भी आ जाएगा आंसर। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 कर देना है। चेंज इन प्रॉफिट बोल रहा है, क्यों बोल रहा है चेंज इन प्रॉफिट? क्योंकि जब कंट्रीब्यूशन में चेंज होगा तो फिक्स कॉस्ट तो बराबर ही होगा ना, दोनों ही केस में फिक्स कॉस्ट हट जाएगा तो चेंज इन प्रॉफिट बचेगा। इसीलिए इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना हुआ है, मैं तो ये भी याद नहीं करूँगा। ठीक है, देख लेना, समझ में आ गया ना क्या कह रहा हूँ मैं, कि चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 क्या आ गया? पीवी रेशियो आ गया। अब अगर चेंज इन कंट्रीब्यूशन है, अब मान लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन 1 माइनस कंट्रीब्यूशन 2 किया हमने। ठीक है, बात समझना मेरी। यहाँ फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 1 है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 2 है। अरे भाई अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगा ये, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस। फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट तो कट जाएगा ना, क्योंकि ये तो बराबर ही जाएगा एक सर्टेन लिमिट तक। तो P1 माइनस P2 बचा, इसीलिए बोल रहा है कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंक्लूड करोगे तब भी पीवी रेशियो होगा। वाह, मज़ा आ गया ना। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट और है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, भी बता देता हूँ मैं। पहले मैं इंक रब कर लूँ। ठीक है, चलो अभी तक मैंने ये बताया था कि सेल्स
इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, इतना तो मैंने समझा दिया था। और मैंने एक चीज़ बोली थी कि जहाँ प्रॉफिट जीरो होगा वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट में जो सेल्स थी उसके आगे जो भी सेल्स होती है वो सारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। आसान था, कुछ कठिन नहीं था इसमें, नथिंग इज डिफिकल्ट हियर। तो जितनी हमारी सेल्स है उसमें से अगर हम ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर देंगे, भले वो यूनिट में हो चाहे वो रेवेन्यू टर्म्स में, बात वही है, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा हमारा। बात समझ में आ गई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? ब्रेक इवन सेल्स, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। अब चाहे यूनिट में लिखो चाहे इसको रेवेन्यू टर्म्स में लिखो, डजेंट मैटर, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कुछ और फॉर्मूले भी हैं, जैसे कि अगर परसेंटेज फॉर्म में निकालना है तो जो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा आया है रेवेन्यू टर्म्स में, याद करो यहाँ जो निकाला था उसको डिवाइड कर दोगे सेल से तो परसेंटेज आ जाएगा। इजी इनफ, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसे। अरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना आ गया, उसको परसेंटेज में नहीं निकाल पाओगे क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखोगे ऊपर, नीचे सेल्स रख दोगे, इनटू 100 कर दोगे, परसेंटेज टर्म में आ गया। आसान था, ठीक है। इतने फॉर्मूले हमको समझ में आ गए, सारे बच्चों ने इसके साथ डिस्कस कर लिए मैंने, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं मुझे ऐसा लगता है कि सेबी इन क्वेश्चंस को दे सकता है एग्जाम में, थोड़ा एनालिटिकल नेचर के हैं जो कुछ क्वेश्चन आगे कराने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी तक नहीं दिए हैं तो ये हो सकता है कि दे दें 1 मार्कर 2 मार्कर में फेस 1 में। इसमें ये बोला गया है कि बताओ कि पीवी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अगर कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स अगर हम चेंज करते हैं तो पीवी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाउ पीवी इज गोइंग टू बी अफेक्टेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, वी हैव टू आंसर दिस। तो आराम समझना, प्यार प्यार से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। एन इंक्रीज इन द फिजिकल सेल्स वॉल्यूम क्या करेगा? पीवी विल इंक्रीज, पीवी विल इंक्रीज, पीवी विल डिक्रीज, पीवी विल रिमेन कांस्टेंट और नन ऑफ द अबव। अच्छा, सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया तो ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। सेल्स वॉल्यूम अगर बढ़ भी गया तो पीवी रेशियो में कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। और मैंने बताया था जब तक वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है तब तक कंट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेल चेंज कर भी दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो उतनी ही रेशियो में बढ़ जाएगा ना, तो कंट्रीब्यूशन तो सेम आ जाएगा, सेम परसेंटेज आ जाएगी कंट्रीब्यूशन की। तो पीवी विल रिमेन कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, हाँ, घर पे ट्राई भी कर लेना एक बार। 100 रुपीज़ दे लेना टोटल सेल, 70 रुपीज़ दे लेना वेरिएबल कॉस्ट और 30 रुपीज़ दे लेना कंट्रीब्यूशन। फिर इसको बढ़ा के देख लेना, इसको 200 कर लेना, इसको 140 कर लेना, इसको 60 कर लेना, फिर परसेंटेज चेक कर लेना, सेम आएगा पीवी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन, बड़े ध्यान से, सॉरी 5th क्वेश्चन है। एन इंक्रीज इन द फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी बहुत आसान है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज किया हमने, फिर से आते हैं सेम इक्वेशन में, ये बताओ मेरे को, ये थी इक्वेशन, ये था हमारा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल कर दोगे तो पीवी रेशियो आ जाता था, ठीक है। ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर फॉर्मूले याद नहीं करने हैं तो, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन में कह रहा है कि अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ा देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो वही रहनी है ना। अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना उसी प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ा भी देंगे तो ये टोटल इनका सम तो बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो पीवी विल रिमेन कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हेयर एज वेल। चलो, नाउ वी हैव द 6th क्वेश्चन विच सेज अ डिक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये बढ़िया क्वेश्चन मिला। इस क्वेश्चन में कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को डिक्रीज कर दिया है। मतलब पहले अगर 100 रुपीज़ की सेल्स थी, पहले अगर वेरिएबल कॉस्ट हमारी 70 रुपीज़ थी, अभी 60 हो गई है। ओहो, अगर ये 60 हो गई है तो यहाँ ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन में 30 था, लेकिन अब कंट्रीब्यूशन 40 हो गया, तो वही परसेंटेज चेंज हो गया है कंट्रीब्यूशन का। देखो ना, कंट्रीब्यूशन 40 हो गया है। मैंने कोई फॉर्मूला लगाया क्या? मैंने समझ के नहीं कर लिया ये। तो 40 अपॉन 100 40%, तो पी इज गोइंग टू बी increased. So option number A should be the correct answer. Let's check out the answer. Yeah, so option number A is the correct answer. बात समझ में आ गई। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Let's have the 7th question. How PV is going to be impacted if a decrease in the contribution margin is there? Oh, contribution मतलब वही fixed cost plus profit. तो सेल्स क्या था? वेरिएबल कॉस्ट। कह रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन में ही डिक्रीज हो गया। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन में डिक्रीज हो गया है तो प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि अब मान लो अगर 60 था और 50 हो गया आउट ऑफ 100, तो पूरे कंट्रीब्यूशन में अगर कम कर दे रहे हो, और पीवी रेशियो इज व्हाट? पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। तो अगर कंट्रीब्यूशन ही कम कर दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि पीवी इज गोइंग टू डिक्रीज। पहले 60 था तो 60% था, अब इसको 50 कर दिया हमने तो 50% हो जाएगा आउट ऑफ 100, इजंट इट?
अगर सेल 100 है तो हमारी, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पीवी विल डिक्रीज। ठीक है, मुझे पता है सबने सही किया होगा, थोड़ा लॉजिकल है, आराम समझेंगे। एक बार दोबारा देख लेना लेक्चर, ठीक है, जो शुरू के कुछ क्वेश्चन कराए हैं ना 3-4, दोबारा देख लेना ताकि सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए फेस 1 में आ सकते हैं। चलो, दिस वन इज गुड वन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, देखते हैं कौन बताता है इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है ये। पहले 100 रुपया था, 100 रुपीज़ थी सेलिंग प्राइस, ठीक है, अर्लियर सेलिंग प्राइस इज ₹100। सपोज द वेरिएबल कॉस्ट इज योर 80 rupees. Now your fixed cost and profit is giving you 20 rupees. That means you have, let's suppose, 10 rupees as fixed cost and 10 rupees as profit. Fine, this is your contribution. ठीक है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ देयर इज इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस। अब अगर सेलिंग प्राइस में इंक्रीज कर दिया हमने, ठीक है, बात समझना ध्यान से, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को इंक्रीज कर दिया, इसको मान लेते हैं 150 कर दिया मैंने। अब बात ध्यान समझना, तो वेरिएबल कॉस्ट तो वही रहेगी ना। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटपुट नहीं बढ़ा रहे हैं हम, 100 से 200 नहीं कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ा के सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं हो रही, यहाँ पे सेलिंग प्राइस को ही बढ़ा दे रहे हैं। पहले 100 रुपए की हम बेचते थे सामान को, एक पेन को। मैंने जो पहले एग्जांपल दिए थे, द अर्ली एग्जांपल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दैट वी वर इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस टू 200 बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट टू 2 फ्रॉम 1। 1 से 2 पेन कर दे रहे थे, तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर जा रहा था। यहाँ पे सिर्फ सेलिंग प्राइस पर यूनिट की ही इंक्रीज हो जा रही है, पर यूनिट की, सबकी नहीं, मतलब आउटपुट को नहीं बढ़ाना है हमें। 100 से 150 कर दे रहे हैं, बट हमारा वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना फिर भी, क्योंकि उसमें तो कॉस्ट इतनी लगेगी, एक पेन की मैन्युफैक्चरिंग में तो नहीं कॉस्ट लगनी है। इसका मतलब है कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, अब 50 रुपीज़ से बढ़ जाएगा, अभी 70 हो जाएगा। इसका मतलब है पीवी इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सेज अ डिक्रीज इन दी फिक्स कॉस्ट। ये तो हम शायद डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिक्स कॉस्ट में डिक्रीज हो भी गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर जिस तरह से फिक्स कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाती तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है, फिक्स कॉस्ट अगर डिक्रीज हो जाएगी तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन पीवी रेशियो में कोई चेंज नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है और सेलिंग प्राइस भी चेंज नहीं हो रही है। यहाँ था ना सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो या तो इसमें चेंज हो जाए या तो इसमें चेंज हो जाए, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो क्योंकि इन्हीं दोनों, क्योंकि जब हम कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज निकालते हैं तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स करते हैं। ठीक है, तो सेल्स सेलिंग प्राइस में भी अगर चेंज आएगा तो भी हमारा डिफर करेगा, पीवी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, इसमें नहीं करेगा, तो पीवी इज गोइंग टू बी रिमेन कांस्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 सेज अ 10% इंक्रीज इन बोथ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हाउ दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू इम्पैक्ट दी पीवी रेशियो। इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दूं इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे खेल रहा है हमसे, बात समझना। अब देखो इसके पहले केस में जो हमने किया था, अगर उस अकॉर्डिंग चले हम कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीज कर रहा था, 100 से 150 कर दिया था, तो पीवी रेशियो इंक्रीज हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना, क्योंकि प्रॉफिट और हमारा फिक्स कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन बढ़ गया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, कह रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो बढ़ रहा है, साथ में वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जा रही है। अगर दोनों को साथ में परसेंटेज सेम इंक्रीज कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं पड़ने वाला। मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ। लेट्स सपोज 100 रुपीज़ अगेन पर यूनिट प्राइस थी, 80 रुपीज़ हमारा वेरिएबल कॉस्ट था, 20 रुपीज़ हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना। इसको 50 कर लेंगे, चलो ठीक है, 80 रहने दो। अब अगर 100 रुपीज़ से 10% इंक्रीज कर दिया सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स इट इज़ नाउ 110। इसको 90 करते हैं, चलो ठीक है, एग्जाम्पल है, 90 कर दिया वेरिएबल। अब कह रहा है कि 10% इंक्रीज सेलिंग प्राइस में भी किया एंड वी हैव ऑल्सो इंक्रीज दी वेरिएबल कॉस्ट बाय 10%। ठीक है, तो 90 से अगर 10% इंक्रीज करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 99 बोलो हो जाएगी। अब हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 99 को अगर माइनस करोगे 110 से तो आएगा 11। अब हमारा कंट्रीब्यूशन 11 आ गया। लेकिन अगर हम परसेंटेज निकालें दोनों ही केस में तो कितना आता है? लेट्स चेक इट आउट। तो कंट्रीब्यूशन था 10, सेल्स थी 100। व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, वी आर गोइंग टू गेट 10% एज आर कंट्रीब्यूशन परसेंटेज इन द फर्स्ट केस। ठीक है सर, समझ में आती बात। सेकंड केस का करके बताओ। ठीक है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, मैं पीवी रेशियो निकाल रहा हूँ सेकंड केस में। कंट्रीब्यूशन था 11, रख दिया, डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। ठीक है जी,
कितना आ गया 10%। बताओ कुछ चेंज हुआ पीवी में? एग्जाम में अगर लॉजिक ना लगे ना तो एग्जाम्पल ले लेना खुद ही, रैंडमली कुछ भी, इसके आंसर मिल जाएंगे। कुछ चेंज हुआ पीवी में? कुछ चेंज नहीं हुआ ना। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि PV is not going to change, it will remain constant. So option number C is the correct answer in the 10th question. Now we have the 11th question, and this question is also numerical, and it is a question that has been asked in phase 2 of SEBI Grade Officer exam. और इतना आसान क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अभी आप सुनोगे तो आपको लगेगा बताओ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या फिर बजट का क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जाएगा ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है, पहले एक बार ब्रीफ समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज लाइक डिटरमाइनिंग दी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो हमने मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट किसी प्रोडक्ट में जो लगेगी वो 100 रुपीज़ लगेगी, ये कंसिडर कर ली। अब हम कॉस्ट कंट्रोल की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद, मतलब जो भी कॉस्ट इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में आगे लगने वाली है उसको हम ये कोशिश करेंगे कि 100 के अंडर ही वो कवर हो जाए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और नाम से ही पता चलता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैसे करना है। अभी आप लोग जब इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन सेज सेल्स यूनिट इज 1,62,500, एक्चुअल कॉस्ट, not the standard cost, it is the actual cost, that is 3 lakh rupees. Now actual fixed cost is 87,000, that is in line with the budgeted cost, मतलब जो बजट कॉस्ट रखी गई थी फिक्स कॉस्ट के लिए वही एक्चुअल कॉस्ट भी है फिक्स कॉस्ट के केस में, बट एक्चुअल कॉस्ट इज 18,000 मोर देन दी बजटेड कॉस्ट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक मैं तरीका बता देता हूँ, न्यूमेरिकल कोई भी न्यूमेरिकल होता है ना, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले जब आप ये स्टेटमेंट्स पढ़ रहे होते हैं ना, इसको खाली एक रीडिंग मारनी है, एक ब्रीफ सी रीडिंग मारनी है, और इम्पॉर्टेंट वाले जो भी फिगर्स हैं उनको लिख लेना है या फिर ऐसे अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है ना, इस पे ध्यान देना है बहुत अच्छे से कि वी हैव टू फाइंड आउट दी बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, मेरे साथ साथ करना, रजिस्टर पेन निकाल के हमें निकालना है बजटेड वेरिएबल कॉस्ट, बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कुछ टेक्निकल नहीं इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, हमको चाहिए बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली, और टोटल यूनिट्स डिवाइड कर देंगे हम। यही तो करना है हमें, और क्या करना है इसमें, बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो जो भी वेरिएबल कॉस्ट थी वो बजटेड वाली अपॉन टोटल यूनिट कर देंगे, वी हैव आवर आंसर। बट क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, हमें चाहिए बजटेड वेरिएबल कॉस्ट, टोटल यूनिट तो हमारे पास है, हमें दिख रहा है, बजटेड वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्चुअल कॉस्ट है 3 लाख, और फिक्स कॉस्ट भी हमें दे रखी है जो कि बजट कॉस्ट के बराबर है, और यहाँ सेंटेंस जो दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट इज 18,000 मोर देन द बजटेड कॉस्ट। का मतलब हम बजटेड कॉस्ट निकाल सकते हैं। बजटेड कॉस्ट बोल रहा है ना कि एक्चुअल कॉस्ट 18,000 ज़्यादा है बजटेड कॉस्ट से, इसका मतलब है बजटेड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से 18,000 लेस होगी, तो इसका मतलब है 3 लाख माइनस 18,000 एंड इट विल गिव यू 2,82,000, इज़न्ट इट। ठीक है, तो हमारी बजटेड कॉस्ट तो वही आ गई, लेकिन हमें निकालना था बजटेड वेरिएबल कॉस्ट। अगर टोटल बजटेड कॉस्ट आ गई हमारी तो वेरिएबल कॉस्ट निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट तो हमें दिया है, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट भी, दैट इज इन लाइन विद द बजटेड कॉस्ट, बोथ आर इक्वल। सो अब हमको निकालना है बजटेड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो हम अपनी टोटल कॉस्ट में से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट इज 87,000। सो अगर हम 280 से 87 माइनस करें तो इट विल बी 1,95,000 होगा ना। ठीक है, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 1,95,000। अब दोबारा से फर्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं जो हमने किया था। हमें क्या चाहिए था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गया हमें बजटेड वाली, टोटल यूनिट हमें मिल गई, क्या करना है, डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब है 1,95,000 डिवाइड बाय टोटल यूनिट इज 162,500। ठीक है, ठीक है, तो लगभग ये आएगा 1.2 समथिंग आएगा। ऑप्शन देखते हैं
क्योंकि 1625 है, 1950 पहले तो 1 से जाएगा, फिर पॉइंट होगा तो लगभग डबल होगा, तो 1.2 समथिंग। तो हमारे पास जो ऑप्शन है 1 पॉइंट में एक ये है और एक ये है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली दिया है 1.20। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन तो वैसे कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है फेज 2 में, बट फिर भी मुझे नहीं लगता इसमें इसको करने के लिए भले आप लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत पड़े, बाकी तो इसमें कुछ था नहीं क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ करके भी टाइम थोड़ा सा वेस्ट ही होता है, ये सब कैलकुलेशन तो मन में हो जाती है ना, तो कोशिश करना जहाँ टाइम सेव हो, क्योंकि क्वेश्चन अब थोड़ा लेंदी आने लग गए हैं सेबी के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। दिस क्वेश्चन सेज इफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 24,000 फेवरेबल, मटेरियल यूसेज वेरिएंस 39,975 फेवरेबल, देन कैलकुलेट दी मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, अभी करेंगे। और ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्वेश्चन आ चुका है PFRDA में फेज 1 में 2021 में, तो क्वेश्चन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले इसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या क्या समझेंगे इसमें हम? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है। हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। हमने भी पढ़ा था ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक स्टैंडर्ड सेट किया हमने कि ऐसा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड है प्राइस का मटेरियल खरीदने का, मान लेते हैं वो 100 रुपीज़ है। जो स्टैंडर्ड सेट किया हमने प्राइस का रॉ मटेरियल का, वो क्या किया 100 रुपीज़, बट जो एक्चुअल में हमने रॉ मटेरियल खरीदे ना वो 110 में आ गए। ओहो, तो ये एक्चुअल हो गया, ये स्टैंडर्ड था, तो जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं वेरिएंस। ओहो, इतना आसान, कुछ था इसमें। तो यहाँ वेरिएंस वर्ड आ रहा है, वेरिएंस का मतलब समझ में आ गया। वेरिएंस का मतलब जो डिफरेंस है, जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस है वो वेरिएंस हो गया। अब यहाँ एक और वर्ड है प्राइस वेरिएंस, तो जो मैंने बताया ये प्राइस वेरिएंस ही था, ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस था, क्योंकि मटेरियल को खरीदते टाइम पे जो डिफरेंस आया है स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, दैट इज व्हाट योर मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज। कुछ था मटेरियल प्राइस वेरिएंस में? कुछ नहीं था ना, आगे समझ में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, एक वर्ड और है, एक टर्म और है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अरे सर ये क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान समझना, ये भी आसान है। मान लेते हैं हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि हमको 1000 आउटपुट प्रोड्यूस करने हैं और उसके लिए हमें लेट्स सपोज 1100 यूनिट्स ऑफ इनपुट लगने वाले हैं। ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, तो भाई हमारा इतना यूसेज का स्टैंडर्ड हो गया कि इतनी यूनिट्स ऑफ इनपुट लगेंगी, बट एक्चुअल में जो यूनिट लगी वो 1050 लगी यूनिट्स। ठीक है, एक्चुअल में तो जो डिफरेंस है 50 का, और ये फेवरेबल डिफरेंस है। फेवरेबल क्यों कह रहा हूँ मैं, हमने सोचा कि हमारा ज़्यादा लगेगा बट हमारी यूनिट्स तो कम लगी हैं, तो ये फेवरेबल हो गया। ठीक है, तो ये है एग्जांपल यूसेज वेरिएंस का, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसका मतलब समझ में आ गया? बोलो, आया? मतलब कितना आसान था, कुछ था इसमें। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का मतलब समझ में आ गया ना? ठीक है, अब आते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में। ये क्या चीज़ है? ये तो सबसे आसान है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब जो हमने जो सेट किया था कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, मान लेते हैं 1000 आउटपुट लेना था हमें, इसमें हमने सोचा था कि हमारी जो टोटल कॉस्ट लगेगी सब कुछ मिला के वो लगेगी 10,000 रुपीज़, और हमारी लग गई 11,000 रुपीज़। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो वेरिएंस हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है ना, ये किन दो चीज़ों से बनेगा? ये बनेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस है और मटेरियल यूसेज वेरिएंस है, जो हमने अभी भी पढ़ा है। अरे भाई, अगर मटेरियल की कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है तो किन रीजंस की वजह से आएगा? एक कि मटेरियल खरीदते टाइम पे हमको महंगा पड़ गया होगा या सस्ता पड़ गया होगा, उसी की वजह से डिफरेंस आया ना। और दूसरा रीज़न क्या होगा कि उस मटेरियल का यूज़ जो स्टैंडर्ड सेट किया था उससे ज़्यादा हो गया होगा या फिर उससे कम हो गया होगा, तो मटेरियल कॉस्ट में इफेक्ट पड़ गया। बात समझ में आ गई? अरे सर इतना आसान था, इतना ही आसान है। अब मेरी बात ध्यान समझनी है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें थोड़ी टेक्निकल होंगी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला, फिर से मैं वही बात कहूँगा, यू डोंट हैव टू मग इट अप, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला सो दैट इन द एग्जामिनेशन you are not going to face any problem with that, right? ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मैंने भी क्या बताया कि कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस हो रहा है एक्चुअल और स्टैंडर्ड में, वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इसका फॉर्मूला। हमने स्टैंडर्ड कितना सेट किया था और कितना एक्चुअली में लगा है।
अगर हमने स्टैंडर्ड ज़्यादा सेट किया था और एक्चुअल में कम लगा तो फेवर में हमारे फेवर में हो गया वो, ठीक है। अगर रिवर्स है तो हमारे अनफेवरेबल हमारे फेवर में नहीं रहा वो, फिर वो अनफेवरेबल हो गया वेरिएंस। इसको और डिटेल में जाएंगे तो ये रहा फॉर्मूला। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे? हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड कॉस्ट? स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमने सोची थी कि इतनी क्वांटिटी इनपुट्स की लगेगी वो, और जो उसका प्राइस हमने प्रिडिक्शन की थी कि इतने प्राइस का इनपुट आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और माइनस जो एक्चुअल है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। कॉस्ट कैसे आएगी? जितने का हमने मटेरियल खरीदा है और जितना मटेरियल खरीदा है दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तभी तो आएगी कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। अरे भाई समझ में नहीं आया क्या? कॉस्ट जो था, जो हमने मटेरियल खरीदा, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो क्या होगी? जितना हमने मटेरियल सोचा इतनी क्वांटिटी लगेगी, मान लो 10 किलो लगेगा, और जितना हमने सोचा था कि जितनी स्टैंडर्ड इसकी प्राइस होगी मटेरियल खरीदने की, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट तो आ जाएगी ना, ठीक है। और एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगी? सेम तरीके से, जितनी एक्चुअल में क्वांटिटी हमको लगी, जितनी एक्चुअल में हमने कंज्यूम किया, खरीदी वो, और जितना एक्चुअल प्राइस था उसका, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। बात समझ में आ गई? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बहुत ईजी था, समझ में आ गया होगा आई होप, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। अब आते हैं प्राइस वेरिएंस में। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, कॉस्ट वेरिएंस में तो हमको समझ में आ गई बात, लेकिन प्राइस वेरिएंस में जो वेरिएंस आ रहा है सिर्फ मटेरियल के प्राइस की वजह से आ रहा है। बात समझने की कोशिश करना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में जो प्राइस का डिफरेंस आ रहा है, जो वेरिएंस आ रहा है वो खाली मटेरियल के प्राइस की वजह से आ रहा है। इसका मतलब जो चेंज होगा ना वो सिर्फ प्राइस होगा। मतलब ये कि स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस करना है, क्योंकि हमें प्राइस का वेरिएंस पता करना है, यूसेज का नहीं, ठीक है। ध्यान रखना, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं कैसे याद करना है फॉर्मूला, या कैसे समझना है, याद तो क्या ही करना है इसमें। तो प्राइस वेरिएंस है ना, कि प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस करोगे तो प्राइस में चेंज आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करना है किससे? ब्रैकेट में रखने के बाद, हाँ, किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं, किससे? एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हम ये पता कर सकते हैं कि प्राइस में जो चेंज हुआ है उसके वजह से इसमें क्या वेरिएंस आया है कॉस्ट में, प्राइस के अकॉर्डिंग। तो हमें इसलिए प्राइस वेरिएंस निकालना है अभी इस केस में। तो प्राइस वेरिएंस के लिए क्या किया हमने? खाली प्राइस में जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट किया और एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंस को, ठीक है। तो हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम समझते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वेरिएंस दैट इज बीइंग देयर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ मटेरियल यूसेज। तो मटेरियल के यूसेज की वजह से जो डिफरेंस है वो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है। तो फिर से माइनस अगर हम करेंगे तो यूसेज को करेंगे, कैसे करेंगे? जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने सोची थी लगेगी वो, और जो एक्चुअल में लग गई है वो, दोनों को माइनस कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बहुत ऑब्वियस है, अगर हम यूसेज वेरिएंस निकाल रहे हैं तो हम किससे करेंगे? प्राइस से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस क्वांटिटी का लेना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और आंसर हमारा आ जाएगा यूसेज वेरिएंस का। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या हो जाएगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, क्योंकि कॉस्ट वेरिएंस दो ही फैक्टर की वजह से हो रहा है ना, प्राइस वेरिएंस की वजह से और यूसेज वेरिएंस की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन देखो पीएफआरडी का आया हुआ है, कॉस्ट वेरिएंस है 24,000 फेवरेबल, ठीक है। तो कॉस्ट वेरिएंस है 24,000 फेवरेबल, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज योर 30,975 फेवरेबल, प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमें निकालना है, ठीक है। मटेरियल, तो ये तो बड़ा आसान हो गया, फिर कुछ नहीं इसमें। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या हो जाएगा? इनको माइनस कर दोगे, ये भी फेवरेबल था, ये भी फेवरेबल था, तो ये ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा, एडवर्स भी बोलते हैं अनफेवरेबल को, तो ये एडवर्स हो जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर जाएगा ना, और माइनस में है इसलिए अनफेवरेबल है। तो 24,000 30,000 कितना हो गया? 6,975, ऐसा कुछ आंसर है, हाँ है। सी इज योर करेक्ट आंसर, 6,975 एडवर्स में। एडवर्स समझ में आ गया ना, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और ये माइनस करना कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा मन में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर है यार, ठीक है। बात समझ में आ गई, पूरा मैंने करके दिखा दिया कैसे करना है, और इसमें कुछ कैलकुलेटर की यूज़ तो थी नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव नाउ, अगेन वी हैव अ न्यूमेरिकल। इट सेज वी हैव टू कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखो मैं तो, मेरा पढ़ने का तरीका यही है न्यूमेरिकल करने का कि मैं पहले वो देखता हूँ कि करना क्या है, उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन देखता हूँ, क्योंकि
वी नो ना कि व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, देन वी रीड द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। बात समझा रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो तरीका वैसे यही होता है, बट वो आपके डिस्क्रिप्शन में है कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मेरा तरीका यही है कि पहले मैं पढ़ता हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या है, उसके बाद मैं बाकी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट करता हूँ कि क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम पे एग्जाम में ये होता है कि अननेसेसरी की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है कन्फ्यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो कॉस्ट वेरिएंस हमें निकालना है। तो कॉस्ट वेरिएंस का हमें ऑलरेडी पता है कि कैसे करेंगे हम। कॉस्ट वेरिएंस हमारा है, हमने अभी डिस्कस किया था ना कि जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है माइनस जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट है, इसको अगर हम करते हैं तो हमारा आता है कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अब हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालना है ये भी हमें पता है। कैसे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। तो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ये और हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है ये, तो 50 आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगा? अरे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, तो 45 इंटू 0.8 सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो ये देखो मैंने बताया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होना चाहिए, फेवरेबल वाला, क्योंकि हमने किया ना भी 50 माइनस 36। ये मैंने करके नहीं दिखाया क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया हमसे पूछा गया है ये स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे सॉल्व इसको तो कितना आएगा? 14 रुपीज़ 14। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। यस, ठीक है, समझ में आ गया बात? बहुत आसान था। अच्छा, लेकिन इसमें सोल्यूशन कुछ और भी दे रखे हैं साथ में, प्राइस वेरिएंस के, यूसेज वेरिएंस के, तो ये कर लेना प्रैक्टिस। अभी इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी तो आई हैवंट डन दैट, राइट। बट आपको प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने हैं तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको भी प्रैक्टिस कर लेना कि प्राइस वेरिएंस कैसे निकालना है और यूसेज वेरिएंस कैसे निकालना है। ठीक है, हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिया आज। अब हमारे पास आता है 14 क्वेश्चन जो कि होमवर्क है और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और सेम क्वेश्चन मैंने अभी कराया भी है। तो इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। और आज की क्लास कैसी लगी मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और बार बार देख लेना इस क्लास को, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं वो अच्छे लेवल के हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। PYQ भी कंसिडर किए हैं मैंने इसमें। ठीक है, तो सारे PYQ भी करा रखे हैं और साथ में कुछ जो प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है जो आ सकते हैं फ्यूचर में वो भी मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी क्लास, और साथ में इस 14 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, वही जो हमने किया था पहले भी, सेम है। ठीक है, तो हमारे पास देखो टोटल कॉस्ट भी दे रखी है एक्चुअल, विच इज़ 9000 ओवर द बजटेड कॉस्ट। तो 9000 माइनस कर देना, बजटेड कॉस्ट आ जाएगी टोटल, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस कर देना, तो बजटेड वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना, तो पर यूनिट बजटेड वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, आसान है। चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए कि क्लास में कितना मज़ा आया, और साथ में इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, और इस लेक्चर को बार बार देखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के टाटा बाय बाय।